Vinayakaya Sarvakarya Karte Sarva Vigna Prashamanaya Sarva Raja Vashikaranaya Sarva Jana Sarva Sri Sarva Purusha Akarshanaya Shri Om Namah Swaha Om Jagadari Jala Pravaha Pavitastale Gale Valam Yalam Vitam Bhujanga Tunga Malikam Damad 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 Damanina Davad Damad Vayam Chakara Chanda Tandavantanotu Shiva Shivam Jagakataha Sambrama Brahmanyani Panirjari Vilola Vichivalari Virajamana Murdani Dhagat 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 Jvala Lalata Patapavake Kishora Chandra Shekhare Rati Pratikshanam Mama Dharadharendra Nandini Vilasa Bandhu Bandhura Suradiganta Santati Pramodamana Manase Kripa Kataksha Dorani Nirodha Durdharapadi Pachitigamare Mano Vinoda Hetu Vastuni Chakabhujanga Pingala Spurat Pandamani Prabha Kadamba Kunkuma Drava Pralipta Digvadu Mukhe Madana Sindhura Spurat Kadutariya Medure Mano Vinoda Madhutam Vivarta Bhuta Bhartari Imam Hinityameva Mukta Mutta Muttamam Sabam Patan Swaram Privannaro Vishuddhi Meti Santatam Hare Gurau Subhakti Mashu Yatina Yatagati Vimohanam Videhinam Suchankara Sachintanam Vimohanam Videhinam Suchankara Sachintanam Om Shava 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 Kurale agricultura, transformação digital e propriedade intelectual. Neste momento, 3 acordos serão assinados na presença dos 2 chefes de Estado. O ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Índia, Subramanian Dejaishankar, assinam
o acordo sobre cooperação no combate ao terrorismo internacional e ao crime organizado transnacional. O ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Índia, Subramanian Jaishankar, assinam memorando de entendimento. É muito importante que as pessoas compreendam que um país mega diverso como o Brasil tem a obrigação de ter uma relação política, cultural, uma relação econômica e comercial com outro país mega diverso como a Índia, dando a maior importância pelo significado que a Índia tem, não apenas por ser um país de 1,4 bilhão de habitantes, mas por ser um país democrático, um país que trabalha pela paz e um país que eu passei a admirar muito mais desde que eu li um livro romanceado de 2 jornalistas chamado, que contava a história do Gandhi. O livro me parece que era Essa Noite e a Liberdade. Era um livro extraordinário que me fez conhecer um pouco a história da Índia, me fez conhecer um pouco o quanto é importante para ser estratégico. Obrigado, primeiro-ministro. Neste momento, faz uso da palavra o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Your Excellency, मेरे परम मित्र राष्ट्रपति लूला, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, बोआ तार्ज। रियो और ब्राजीलिया में हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति लूला का, मेरे मित्र का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अमेजन की प्राकृतिक सुंदरता और आपकी आत्मीयता दोनों ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया है। आज राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना
मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, मेरे मित्र राष्ट्रपति लूला भारत और ब्राजील स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के चीफ आर्किटेक्ट हैं। हमारे संबंधों को प्रगाढ़ करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे उनके साथ हर मुलाकात में दोनों देशों के लोगों की समृद्धि और कल्याण के लिए काम करने की ऊर्जा मिली है। मैं इस सम्मान को भारत के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित करता हूं। फ्रेंड्स, आज की चर्चाओं में हमने हर क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने पर बात की। हमने आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फुटबॉल ब्राजील का जुनून है। क्रिकेट भारत के लोगों का पैशन। बॉल बाउंड्री के पार करे या गोल में डाले, जब दोनों एक ही टीम में हो तो 20 बिलियन की साझेदारी कठिन नहीं है। हम मिलकर भारत मर्कोसुर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के विस्तार पर भी काम करेंगे। फ्रेंड्स, ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। पर्यावरण और क्लीन एनर्जी दोनों देशों की मुख्य प्राथमिकता है। इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आज जो समझौता किया गया है, उससे हमारे ग्रीन गोल्स को नई दिशा और गति मिलेगी। इस वर्ष ब्राजील में होने जा रही COP30 बैठक के लिए मैं राष्ट्रपति लूला को शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड, रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरी आपसी विश्वास का प्रतीक है। हम अपने रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने के प्रयास जारी रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर में हमारा सहयोग बढ़ रहा है। यह समावेशी विकास और ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन की हमारी एक जैसी सोच का प्रमाण है। ब्राजील में यूपीआई के एडॉप्शन पर भी दोनों पक्ष मिलकर काम कर रहे हैं। हमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस जैसे क्षेत्रों में भारत का सफल अनुभव ब्राजील के साथ साझा करने में खुशी होगी। कृषि और पशुपालन क्षेत्र में हमारा सहयोग दशकों पुराना है। अब हम एग्रीकल्चरल रिसर्च और फूड प्रोसेसिंग पर भी मिलकर काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम अपना विन विन सहयोग बढ़ा रहे हैं। हमने ब्राजील में आयुर्वेद
और ट्रेडिशनल मेडिसिन के विस्तार पर बल दिया। फ्रेंड, पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों का महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोनों देशों में स्पोर्ट्स में गहरी रुचि भी हमें आपस में जोड़ती है। हम चाहते हैं कि बिना वीजा काउंटर की लंबी लाइन के भारत और ब्राजील के संबंध कार्निवल जितने रंगीन हो, फुटबॉल जितने जोशीले और सांबा की तरह दिलों को जोड़ते जाएं। इसी भावना से हम दोनों देशों के लोगों को, विशेष रूप से टूरिस्ट, स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स और बिजनेसमैन के बीच संपर्क सुगम बनाने के लिए प्रयास करेंगे। फ्रेंड, वैश्विक स्तर पर भारत और ब्राजील ने सदैव करीबी समन्वय के साथ काम किया है। दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारा सहयोग न केवल ग्लोबल साउथ बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रासंगिक है। हम मानते हैं कि ग्लोबल साउथ की चिंताओं और प्राथमिकताओं को वैश्विक मंचों पर रखना हमारा नैतिक दायित्व है। आज जब विश्व तनाव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, मेरे मित्र ने बड़े विस्तार से बताया है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। भारत ब्राजील की यह साझेदारी स्थिरता और संतुलन का एक अहम स्तंभ है। हम एकमत है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड्स हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको भारत यात्रा करने का निमंत्रण भी देता हूं। धन्यवाद। मुइतो ओब्रिगादो। Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. मौजूद है उनका ब्राजील का प्रतिनिधिमंडल। दोनों देशों के बीच की ये शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की तस्वीरें। अब ये महत्वपूर्ण बातचीत इसलिए भी है कि हम लगातार जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं जया, कि कैसे तमाम अपार संभावनाएं हैं सहयोग के उन क्षेत्रों में जहां अभी सहयोग हो रहा है और नए संभावनाओं के द्वार भी खुलने की पूरी गुंजाइश दिखाई पड़ती है। उसका एक बड़ा आधार इस बातचीत पर तय होगा और इसके बाद संभावित जो हम लोग बात कर रहे हैं कि कई MOU साइन होते नजर आएंगे, वो तस्वीरें भी बहुत जल्दी देखेंगे। उसी के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत और ब्राजील के बीच आपसी सहयोग और संबंधों को एक नई दिशा देने के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में बीते कई वर्षों से भारत और ब्राजील की हम भागीदारी देख रहे हैं, साझेदारी देख रहे हैं। वैश्विक मंचों पर दोनों देश आपसी समझ को साथ में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे नए क्षेत्रों की खोज करते हुए नए समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है,
इस बार ये देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी ब्राजील जा चुके हैं, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील की राजकीय यात्रा है। दोनों देशों के जो शीर्ष नेताओं के बीच जो एक तरह की आपसी समझ जो विकसित हुई है, कहीं ना कहीं वो भारत और ब्राजील के रिश्तों को एक नया आयाम दे रही है और यही इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच अब नए महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है, जिसकी जमीन यहाँ पर इस डेलीगेशन लेवल टॉक्स में तैयार हो रही है। बिल्कुल, द्विपक्षीय मुलाकात शिष्टमंडल स्तर की और निश्चित तौर से ये एक मौका होता है जहाँ पर दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर जो आपसी सहयोग के क्षेत्र हैं उन पर भी बात होती है, क्षेत्रीय मसलों को लेकर भी विस्तार से बात होती है। तो ग्लोबल इश्यूज को कैसे हैंडल करना है, उन चुनौतियों से कैसे निपटना है, उसके समाधान पे कैसे आगे बढ़ना है, उस पर भी समझ बेहतर करने का एक मौका होता है। और ऐसे में भारत और ब्राजील न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर अपने सहयोग को कैसे बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए भी कैसे मिलकर एक साझा प्रयास कर सकते हैं, वो तमाम बातचीत इस वक्त निश्चित तौर से इन तस्वीरों के माध्यम से झलकती दिखाई पड़ रही है। विनायकाय सर्वकार्यकर्त्रे सर्वविघ्नप्रशमनाय सर्वराजवशीकरणाय सर्वजना सर्वश्री सर्वपुरुषाकर्षणाय श्री ओम नमः स्वाहा। ओम जगत्प्रवाहपावितस्थले गले वलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमनिनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवन्तनोतु न शिव शिवं जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमनिलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवालरि विराजमानमूर्धनि धग 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 ज्वलाललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरा स्फुरदिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद हेतु वस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गला